Thursday, 11 a.m. in the morning. We come up with the Hindu analysis. Today is 22nd August, that is Tuesday. आज 22 August Tuesday है, and we are here with the Hindu analysis of 22nd August. So if I am audible, just write in the comments, yes sir, you're audible. अगर मेरी आवाज आ रही है एक बार आप लिख दो. Now, so basically the first page article says no governor's assent, Manipur assembly session and non-starter. So this we will be discussing. Then another article is Supreme Court to constitute a new bench to hear Kaveri water dispute, water issue. ठीक है? So ये दोनों हम लोग आज जानेंगे. So let's start with this one. I hope you are aware in the last 3-4 months Manipur has been very much in the news because of conflict and all. So basically no governor's assent. Assent मतलब क्या होता है? मतलब नॉड या परमिशन एक तरह से ना, या अप्रूवल कह सकते हो, है ना. So since governor did not give approval, the Manipur legislative assembly session could not start, है ना. Became a non-starter means it was not started. So what is the scenario exactly? I'll be telling you, but before that there is a question for you. Who is the governor of Manipur? Your options are N. Biren Singh, Anusuya Uki, Najma Heptullah, ला गणेशन. What is the right answer to this question? आपको मणिपुर के गवर्नर का नाम बताना है because in the first page the name of governor is mentioned. So I'm expecting you all to answer it, and it is coming very much in the news. Yes, Gauri Sethi, right? Number of tab, yes, Gauri Priya Chavan, you all right. The right answer is option B. हाँ देखो, N. Biren Singh is the chief minister of Manipur, ठीक है? And these two are ex-governor of Manipur. ठीक है, पहले रह चुके हैं लोग, ठीक है. I think he is actually right now, if I'm not wrong, Nagaland governor, ठीक है. Okay, yes. So here the right answer is option B. तो ये लिखा हुआ है. Now the next question is Raj Bhavan refers to what? Your options are CM office, governor's house, president's house, none of the above. This word is also mentioned on the first page. फर्स्ट पेज में जो फर्स्ट पैराग्राफ है या फर्स्ट जो आर्टिकल है उसमें राजभवन करके टर्म मेंशन है. व्हाट इज दैट? आपको बताना है वो क्या चीज है. राजभवन बताइए. चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, गवर्नर्स ऑफिस, प्रेसिडेंट्स हाउस, नन ऑफ द अबव. व्हाट इज दैट? ओके, सो द राइट आंसर एक्चुअली इज राजभवन जो है ना वो गवर्नर्स हाउस को कहते हैं, प्रेसिडेंट्स हाउस को राष्ट्रपति भवन कहते हैं. राष्ट्रपति भवन. यस, बी इज द राइट आंसर. यस, आलिया, नितिका, सुष्मिता, यस, आलोक, प्रिया, नम्रा, यू ऑल राइट. हाँ, जिन्होंने भी बी आंसर किया यू ऑल राइट. प्रेसिडेंट हाउस को राष्ट्रपति भवन कहते हैं. ऑप्शन बी करेक्ट है. राजभवन इज गवर्नर्स हाउस. तो ये लिखा है राजभवन यानी गवर्नर्स हाउस या गवर्नर्स ऑफिस डिड नॉट इशू नोटिफिकेशन टू कन्वीन असेंबली ऑन मंडे दो द स्टेट कैबिनेट रिकमेंडेड टू होल्ड अ स्पेशल सेशन. ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट जो है, स्टेट कैबिनेट मतलब द चीफ मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे गेव एडवाइस to the governor, है ना, to initiate a legislative assembly session. ठीक है, तो सेशन बुलाने का काम जो होता है ना, finally it's with the governor, and generally it is believed that governor works on the advice of the cabinet or council of ministers. Very rarely, I mean, there are some discretion मतलब without aid and advice. तो generally governor works with the aid and advice of the council of ministers, but here we have seen that even if the cabinet or the council of ministers requested the same, but still the governor did not bring the actually passed an order or summoning the legislative assembly. ठीक है, so 60-member legislative assembly failed to hold a special session to discuss ethnic violence in the state as Raj Bhavan did not issue notification to convene it despite a recommendation from state cabinet. ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? The special session could not be held as we did not receive the requisite notification from governor, a senior official said. Okay, so that is what you should be knowing it. इससे पहले जो मार्च में सेशन हुआ था, which was adjourned, signed, die and all. ठीक है, this is में एक वर्ड लिखा adjourned, signed, die. इसका मतलब समझते हो? When it is actually when a speaker wants to end the session, complete the session, so it actually adjourns, signed, die. ठीक है, ये उसको कहते हैं adjourned, signed, die. हमेशा के लिए adjourn कर देता है मतलब without any giving any further date. Then it is the governor who prorogues, है ना, prorogues the house or stop the session final. तो summoning of a session, summoning and proroguing of session, prorogue लिखते हैं word. Session is with the power, I mean it's the power of governor after all. ठीक है, so just have an idea about that.
ओके, दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो ये सब टर्म पता होना चाहिए, एडजॉर्न, ठीक है, ये सब पढ़ना जाके। फिर एक होता है एडजॉर्न साइन डाई, फिर समनिंग सेशन मतलब बुलाना, ये गवर्नर बुलाते हैं या प्रेसिडेंट, है ना। देन प्रोरोगिंग द सेशन, ये सब वर्ड थोड़ा सा पढ़ना जाके। गो एंड रीड दीज वर्ड्स, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ इट एग्जैक्टली। ओके, मैंने थोड़ा सा बेसिक बता भी दिया। Okay, so that was there in this article. The next one is Supreme Court to hear constitute a new bench to hear 𝗟𝗏𝗴𝗹 water dispute. So actually, the appearing before the bench, senior advocate 𝗚𝗂 𝗙𝗏𝗀𝗏, additional solicitor advocate general were there and all. ठीक है, मैंने आपको ये सब बताया है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, देन स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल, डेप्यूटी एडवोकेट जनरल, दीज आर द थिंग्स मेंशन्ड हियर। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट। हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, कावेरी रिवर जो है, this is state of Karnataka, this is state of Tamil Nadu, है ना। So Kaveri river starts from Karnataka, goes to Tamil Nadu. Now the issue is the Tamil Nadu wants that Karnataka should release 2400 cusecs of Kaveri water. तो एक्चुअली क्या, यहाँ से अगर वाटर रिवर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डैम्स बने हुए। So if the Karnataka will release it, then only the Tamil Nadu will get water. Otherwise here you will find some sort of drought. अगर सारा डैम से पानी रोक दिया जाएगा तो ड्रॉट आ जाएगा ना इधर। So that is why these are the issues tussle between the two states and all. Okay, yes, हाँ, someone was having confusion। देखो, एक ऐसे कावेरी लिखते हैं और एक ऐसे लिखते हैं ना, both are same thing, ठीक है, 𝗂𝗏𝗴𝗏 𝗟𝐶𝗴𝗃𝗏𝗴, that's same thing, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना, सेम ही कावेरी है। ओके, यस, ठीक है, वही कर्नाटक से शुरू होती है, इट गोज टू तमिलनाडु लाइक दिस, ठीक है। हाँ, सो हियर इज गोदावरी, यहाँ से आते, कृष्णा जाती, फिर कावेरी, सही है ना, गोदावरी कृष्णा कावेरी, है ना, गोदावरी कृष्णा कावेरी, फिर वैगा यहाँ पे, ठीक है। खैर, ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। सो इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा डिस्प्यूट चलाता है इसका, उसके लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया जाता है आर्टिकल 262 के अंदर। अगर पढ़ना होगा, थोड़ा सा कभी टाइम मिले तो पढ़ना, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अंडर 262, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज Chandrayaan-3 reveals dark side of the moon. I hope you are aware that very soon we hope that we will be doing successful soft landing on actually moon, है ना। So एक रीजन है हायना, हायन, HAYN, इसको क्या बताया गया है, सर लूनर इम्पैक्ट क्रेटर। क्रेटर समझते हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रेटर? देखो, जनरली अगर आपने वॉल्केनिज्म पढ़ा होगा तो उसमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये दिस इज, यहाँ से वॉल्केनो फटा, है ना। ओके, so you will find a lot of volcanoes and all in other places, let's say in moon and Mars and all. तो जब वॉल्केनो ब्लास्ट हो जाता है उसके बाद ये वाला हिस्सा कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा ऐसे गड्ढा टाइप का, ओके, लाइक दिस, ठीक है। so this is called as crater, ठीक है। ओके, इसमें पानी भी जम जाता है, कई बार क्या होता है, ये बहुत ह्यूज बन जाता है, तो उसको हमें ऐसे बनता है, तो ऐसे ह्यूज लाइक दिस, तो फिर उसको कहते हैं कैल्डेरा, कैल्डेरा लेक्स वगैरह भी होता है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट, हाँ, गड्ढा हम लोग हिंदी में कह देते हैं। सो एक्चुअली ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है वॉल्केनिज्म में, ठीक है, उसको क्रेटर कहते हैं, आप अपने से इस तरह समझ लेना, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यू विल फाइंड दिस टाइप्स ऑफ क्रेटर्स वेरी मच इन मून एंड अदर प्लैनेट्स, है ना। तो द फार साइड इज आल्सो नोन, तो वही हैन, HAYN उसका नाम रखा गया, HAYN, देखो लग रहा नहीं उसी टाइप का, हाँ। सो दैट वाज कैप्चर्ड बाय LHDAC, लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। ये याद रखिएगा, व्हाई आई एम टेलिंग यू। देखो, इस तरह का क्वेश्चन आया था क्लैट 2020 में, हैमर करके ना, जो राफेल जेट से रिलेटेड था, उसका फुल फॉर्म पूछा था। दे आस्क्ड द फुल फॉर्म ऑफ हैमर which was related with Rafael jet. So in the same fashion they can ask about LHDAC, so lander hazard detection and avoidance camera, याद रखिएगा, which is on board, which is actually on board the Chandrayaan-3 mission and all. This camera assists in locating a safe landing area, etc. and all. That is what you should be knowing it. ठीक है? Okay, this is the test series we are providing for 2024 batch. If you have any issue, call on this number 95388 We are providing for CLAT, ALET, and OLET. Similarly, we are running a crash course also for this year, and for the next year we are running a full-fledged course, 380 plus live sessions, 300 plus recorded videos, etc. If you have any question, call on this number 95388 Okay, yes, and we are providing a 3-day free trial as well. ठीक है, तो go to our app, go to CLAT section, you will get a lot of, I can say 3-day free trial. Okay, let's start with editorial. BRICS test for India's multipolarity rhetoric. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ,
BRICS summit is going to happen where? Your options are South Africa, India, China, Brazil. अरे वो कुछ नहीं, हैन जो है एक नाम दिया गया है क्रेटर का, क्रेटर ऑन मून, ठीक है, बस इतना समझ लो, जिसको इसरो ने अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। क्रेटर मैंने बताया जब वोल्केनो, जब ब्लास्ट होने के बाद, वोल्केनो का ब्लास्ट होने के बाद जो हिस्सा बचता है ना ऊपर का, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज क्रेटर, लाइक दिस, है ना, आपने देखा होगा ऐसा, समथिंग लाइक दिस, जस्ट गूगल सर्च इट, द वर्ड क्रेटर, तो आपको मिल जाएगा इस तरह की इमेज, ठीक है। हाँ, सो इट इज गोइंग टू हैपन विच सिटी, कौन से शहर में हो रहा है ये भी बता दीजिए। सो इट्स गोइंग टू हैपन इन साउथ अफ्रीका, एंड आप देख सकते हो पीएम मोदी लीव्स फॉर साउथ अफ्रीका टू अटेंड 15th ब्रिक्स समिट। तो इससे रिलेटेड सारे सवाल आपको पता होने चाहिए, व्हेन इट वाज फाउंडेड, फर्स्ट समिट कहाँ हुआ, पहले ब्रिक कहलाता था, फिर ब्रिक्स कब हो गया, इन विच ईयर, इज देयर एनी हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर है भी कि या नहीं है। सो गो एंड फाइंड आउट दीज थिंग्स अबाउट ब्रिक्स, ठीक है। यस, तो एक्चुअली होने जा रहा सैंडॉन कन्वेंशन सेंटर, जो कि आपको मिलेगा जोहान्सबर्ग में। सो इट्स एक्चुअली इन द सिटी, वेरी फेमस सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग, यू विल फाइंड सैंडॉन कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट, हाँ, वंस अगेन New Delhi is back in the thick of global geopolitics of things, chairing summits, navigating tricky management. अब ये सब इतना टर्म्स पे नहीं जाना है, ठीक है। The upcoming BRICS summit is going to happen in South Africa from 22 to 24th August, यानी 8 से 2 दिन तक चलेगा, ठीक है। So will be an important for Indian diplomacy and all. The ability of BRICS to reorder, steer global economy in any significant manner, ये सब ठीक है, ये सब में इतना डिटेल नहीं जाना, ठीक है। Okay. The geopolitical development of past year or so and the challenge faced by UN system may have given another lease for life to BRICS. तो challenge faced by UN system, UN system में क्या क्या challenge है? बहुत सारे challenge है। एक है जैसे UN Security Council में challenge है, P5 members है, why are not other countries representing? Asian countries are not very much, African countries, तो एक challenge ये। दूसरी बात है कि if P5 countries do something wrong, then of course there cannot be veto, cannot be issued against them। और एक बहुत सारी चीजें challenges है ना। So developing versus developed country का tussle है ना, so this is also a tussle, then other issues are there। तो इसमें बता रहे हैं कि ब्रिक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। ब्रिक्स आफ्टर ऑल इज आल्सो मोर ग्लोबली रिप्रेजेंटेड देन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड G7, है ना। तो अब क्या बताना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि G7 जो है उसमें जो है ना मोर ग्लोबली रिप्रेजेंटेड नहीं है ब्रिक्स एज कंपेयर टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का P5 देखा होगा, सो कौन कौन नेशन है, सब वेस्टर्न नेशंस है ना, ये सब नेशन है ना। इसमें से मतलब मैंने रफ खींचे तो अफ्रीका से तो कोई भी नहीं, साउथ यहाँ से तो कोई नहीं है, ईस्टर्न रीजन से कोई नहीं है ना। जबकि अगर ब्रिक्स देखोगे तो यहाँ ब्राजील है, फिर रशिया है, इधर रशिया, फिर इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, कंपैरेटिवली मोर डाइवर्सिटी है, ये कहने का मतलब, हाँ, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। एंड G7 दो लेस देन G20, हाँ, लेकिन G20 में और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, ये सब रीजन है, बहुत सारा ये सब कंट्री है, ये सब भी है। सो यू कैन से यूएन से ज्यादा रिप्रेजेंटेड ब्रिक्स है, बस इससे ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन G20 में है ना। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। G4 कोई बच्चा पूछ रहा है, हाँ, G4 क्या है, इसमें 4 कंट्री है, इंडिया, जापान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, एक बार चेक कर लेना, इंडिया, जापान, ब्राजील, आई थिंक साउथ अफ्रीका इज आल्सो देयर, या हाँ, साउथ अफ्रीका इज आल्सो देयर। ये 4 कंट्री का डिमांड है, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यही है मैं, हाँ। ब्राजील, जर्मनी है शायद, हाँ, एक बार चेक कर लेना G4 में कौन है। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड G4 इज दीज 4 नेशंस actually are formed a grouping and they want pressurized UN Security Council that they should also become a member of permanent members, permanent seats, they should also get permanent seats। तो P5 है, तो ये 4 और चाहते हैं कि हमारे भी मेंबरशिप हो। इसमें इंडिया, जापान, ब्राजील है, एक और चेक कर लेना, शायद है जर्मनी या साउथ अफ्रीका, शायद जर्मनी आई थिंक, है ना, ठीक है, जर्मनी होगा, ठीक है, ओके। फिर उसके काउंटर में कॉफी क्लब भी बनाया गया है, वो सब ना जानने की जरूरत नहीं है, टू काउंटर G4, ठीक है, उतना लंबा बहुत थोड़ा ज्यादा है आपके लिए, उतना रहना दीजिए, ठीक है। खैर, दैट ग्लोबल गवर्नेंस हैज फेल्ड और दैट इट रीक्स ऑफ डीपली अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नीड नो रिपीटेशन एंड ऑल। तो ये सब बता रहे हैं, देखो, देन इफ द डीपली अनरिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन एंड द मैकेनिज्म हैज लेड टू देयर फेलियर, देयर इज लेटेड पॉसिबिलिटी ऑफ मोर इंक्लूसिव सिस्टम। मोर इंक्लूसिव सिस्टम मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा सिस्टम हो जिसमें ज्यादा, आई मीन मोर डाइवर्सिटी शुड बी देयर। लाइक फॉर एग्जांपल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट इंक्लूसिव, इट इज लिमिटेड टू ओनली रिच नेशन। There is no representation of Africa, less representation of Asia, no representation of, let's say, Latin America or South America, ठीक है।
तो इसी की बात कर रहे हैं। डीपली अनरिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस है ना, अनरिप्रेजेंटेटिव या जिसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक डेफिसिट, ये सब टर्म लिखा जाता है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन IMF एंड वर्ल्ड बैंक, दीज ऑल आर एक्चुअली डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज, इवन UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन की जो मेन थिंग है ना, दैट 40-year-old एंड ऑल, तो ये सब बता रहे हैं, ठीक है। ब्रिक्स सेंस ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स एंड ऑल। Now, for instance, the uncertainties arising out from Ukraine war and the steady rise of China have clearly provided a new lease of life, है ना, of otherwise moribund। देखो moribund क्या मतलब होता है, moribund का मतलब होता है about to die। देखो इसमें थोड़ा सा टफ वर्ड यूज किया है, मतलब ऐसा ये लिख रहे हैं ऑथर इज सेइंग कि ब्रिक्स वाज अबाउट टू डाई और उसका एसेंस खत्म हो रहा था, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। But recently, with the Russia-Ukraine war and the rise of China, the value of or the BRICS value is actually a rising platform now। ठीक है, तो वही बताना चाह रहे थे कि चूंकि रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, उसमें रशिया यहाँ पे, तो अब इसका वजन और बढ़ गया, इसका वैल्यू और हो गया, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। नॉट ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विल ट्रूली बी डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टी, तो एक टर्म होता है, एक होता है यूनिपोलैरिटी, यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है, फिर है बाइपोलर वर्ल्ड, एक है मल्टीपोलर, ये समझते हो। यूनिपोलर मतलब वन सुपर पावर, जैसे मान लो कह लो यूएस। बाइपोलर जनरली कोल्ड वॉर में कहा जाता था कि यूएस वाज देयर एंड यूएसएसआर। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नाउ टुडे वी आर हैविंग मल्टीपोलैरिटी, कोई भी एक वर्ल्ड पावर नहीं है, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे पोल है, यानी बहुत सारे पावर है, सो दैट इज व्हाट द टर्म मल्टीपोलैरिटी इज नाउ बीइंग रेफर्ड टू, है ना। सो ये बता रहे हैं कि ना ही ब्रिक्स ना ही SCO जो है पूरी तरह डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस है। दीज फोरम्स टू आर रिप्लीट मतलब विद कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड ऑल, ठीक है, इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, ठीक है, भरे पड़े हैं ना, कैलकुलेशन इंक्लूडिंग इनबिल्ट और अनसेट हायरार्कीज एंड ऑल, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। हाँ, मल्टीपोलैरिटी इसके एडिटोरियल के हेडलाइन में मेंशन था। एंड इट दीज आर वेरी फोरम्स गुड नाइट एक जेन्युइन कन्वर्सेशन मेकिंग ग्लोबल गवर्नेंस मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव। तो मतलब मेन टारगेट क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस मतलब कि वर्ल्ड सिस्टम कैसे चले, है ना, को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना, मींस मोर कंट्री शुड बी रिप्रेजेंटेड, एंड इंक्लूसिव मींस, इंक्लूसिव वर्ड जो होता है वीकर सेक्शन के लिए खास होता है। It means the poor countries should have their representation. The weaker countries, let's say from African nations or the third world nations, should also have the say in global governance, in participation in UN Security Council, in BRICS, in G7, or in formulating multilateral dialogues or meetings or groupings, etc. ठीक है, ये सब बात हो रही है। ओके, ईरान ने SCO ज्वाइन किया ना, ये बता रहे हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Okay, New Delhi's dilemma and all. There is, for instance, a tendency in West to view India's membership of BRICS and SCO in the context of Ukraine war. हाँ, अब देखो क्या है, जब when Russia-Ukraine war happened, so the world has been divided between pro-Russia and pro-Ukraine group. तो चाहे तो आप इधर हो, चाहे तो इधर हो. Okay, that is how the world politics is being viewed. तो जब से BRICS और SCO हुआ है, तो India is a part of BRICS and SCO. अगर आप गौर से देखोगे, इस दोनों में रशिया और चाइना का मतलब काफी अच्छा अहम रोल है, right? In both the nation. है ना। However, at the same time, India is a part of Quad also. India तो Quad का भी पार्ट है, and Quad is generally considered as मतलब foreign policy experts say that it is an anti-China platform. ऐसा भी लोग कहते हैं। तो उधर तो SCO BRICS का ही पार्ट है, तो इधर Quad का ही पार्ट है। So it's not correct to say कि India is I mean here or there. I mean exactly, but West की आदत होती है कि they see it from the standpoint of view of Russia-Ukraine war. Okay, if you are participating in BRICS and SCO, then most likely you will be from Russia's side or something like that. ठीक है। And G20, G7, BRICS, SCO and Global South at the same time. हाँ, अब देखो ग्लोबल साउथ, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आपको, बताया ना, ये जो डेवलपिंग नेशंस है, ये ब्रेंट लाइन होती है, these are ग्लोबल साउथ, द डेवलपिंग नेशंस, ये सब डेवलप्ड नेशंस ऊपर वाला होता है, ठीक है। यस, नहीं आलिया कौसर, आपने G20 का बताया। G20 इज ग्रुपिंग ऑफ 19 नेशंस प्लस एंटायर यूरोपियन यूनियन। SCO इज अ ग्रुपिंग ऑफ 9 कंट्रीज, ठीक है, इसमें रशिया है, चाइना है, फिर इंडिया है, फिर ईरान है, फिर सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ठीक है, जैसे उज्बेकिस्तान वगैरह हो सब। हाँ, ओके, ठीक है। दैट इज डीपली हिस्टोरिकल एंड इंडियाज एक्टिव पार्टिसिपेट इन नॉन वेस्टर्न मल्टीलैटरल फोरम सच एज BRICS एंड SCO एंड ग्लोबल साउथ मस्ट बी सीन एज इंडियाज रिस्पांस टू अनडेमोक्रेटिक एंड इक्विटेबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल। हाँ, देखो अब क्या समझना, यही मैंने बताया ना कि IMF, वर्ल्ड बैंक और UN सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है वेस्ट डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म, है ना, या इसको टर्म लिखा है कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट है यहाँ,
मतलब क्या है कि पूरी तरह डेमोक्रेसी इसमें नहीं है ना अब, मतलब देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेस्टर्न साउथ अफ्रीकन कंट्रीज या फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, कम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब देखो ये बता क्या रहे हैं कि अगर इंडिया एससीओ या ग्लोबल साउथ या ब्रिक्स की मीटिंग में जा रहा है, सो इंडिया व्हेन इट्स पार्टिसिपेटिंग इन दी समिट्स ब्रिक्स एससीओ एंड ऑल, इट इज बिकॉज वी आर सेंडिंग ए सिग्नल कि आपका जो ये सब है ना ये पूरी तरह डेमोक्रेटिकली परफेक्ट नहीं है, मींस देयर इज नो मच से ऑफ weaker countries or third world countries या global south या developing countries. That is why we are participating here also. ठीक है, ठीक है, that is what you should be knowing it. देखो एशियन नाटो टर्म जो है क्वाड को चाइना ने कहा है, चाइना हैज कॉल्ड इट एज एशियन नाटो, कुछ लोग लिख रहे हैं कमेंट में इसलिए बता दे रहे हैं, दिस इज चाइनाज वर्जन, चाइना से दैट क्वाड इज एन एशियन नाटो। ये सब टर्म थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लें एग्जाम में, ठीक है। इंडिया बिलोंग्स टू दिस एंड ऑल, हाँ ये सब बात हो गई है ना। One of the major dangers of current churn in global geopolitics is the rise of competing blocks in the international systems, है ना। competing blocks मतलब वही होता है groupings, जैसे ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, सब blocks है ना, different है ना। So that is what multipolarity, वही मैंने बताया, in Indian historical imagination is about equity, inclusion and representation। तो क्या टर्म होता है इक्विटी, जो कि इंक्लूजन से बहुत रिलेटेड होता है। इंक्लूजन मतलब क्या होता है, वीकर्स पुअर्स को हेल्प करना और उनकी भी वॉइस होना, गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस। इक्विटी का मतलब होता है कि अगर मान लिया कोई बंदा, जैसे ये इस तरह डिपेंड होता है, इट्स नॉट इक्वालिटी, इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट। जैसे कोई बंदा है, कोई बंदा हेल्दी है और कोई बंदा की हाइट कम है, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा, तो उसको एक बॉक्स दे दिया गया ताकि दोनों की हाइट बराबर हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज इक्विटी। मतलब क्या हुआ, the one who is weaker section, they should be given some benefits so that it should ensure level playing field। जो कमजोर है उसको थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए ज्यादा, ताकि वो बाकी लोगों के बराबर आ जाए। That's the idea of inequity, है ना। Okay, so that is what is being talked about now. So China's question that the question that New Delhi must ask every step of the way as it pursues a multipolar world and alternatives all। ठीक है, तो अब इंडिया का ग्लोबल गवर्नेंस में देखो अब क्या है, जैसे ब्रिक्स है, ठीक है, फिर एससीओ, इसमें तो चाइना भी तो है, एंड वी डू नॉट हैव मच गुड रिलेशनशिप, स्पेशली इन रीसेंट ईयर्स, स्पेशली आफ्टर गलवान क्लैशेस एंड ऑल, देयर हैव बीन सम इश्यूज रिगार्डिंग इट। फिर लास्ट ईयर देयर वर सम इश्यूज इन तवांग वैली आल्सो, आपने सुना होगा ये सब, है ना। हाँ, फिर एक डी डॉलराइजेशन वुड लीड टू, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आज के लिए काफी न्यूज में आ रहा है। देखो होता क्या, व्हेनेवर इंडिया डू डील्स बिजनेस विद एनी अदर कंट्री, वी जनरली डू इट इन डॉलर्स। But now we are actually shifting from that. Like for example, recently हमने सुना होगा India and UAE have decided to do rupee dirham trade. Similarly, rupee ruble agreement sign हुआ था India रशिया के साथ, yes, है ना। So that is what is being in the news, ठीक है। हाँ सीपा भी साइन हुआ था, तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, रूपी दिरहम अग्रीमेंट। तो डी डॉलराइजेशन मतलब ये है कि we will be less using dollars, है ना। Okay, so that is what is being talked about। would lead to strengthening of rupee is delusion as is the belief that China and share what has। अब इतना इस पर डिटेल नहीं जाना, बस टर्म्स याद रख लो, ठीक है। given its size, economic influence and the spread of Belt and Road Initiative। अच्छा ये आपको पता है, ये मैंने पढ़ाया है, अगर नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा। Belt and Road Initiative, very 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 important, China's initiative of Belt and Road Initiative। China can influence BRICS and India with limited resources would struggle to match this paradoxically and all। तो मतलब ये बताने की मीन्स इट्स डिफिकल्ट टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हालांकि इंडिया की एक पॉलिसी है, बताइए तो उस पॉलिसी का नाम क्या है? टू काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देयर इज अ पॉलिसी ऑफ इंडिया, व्हाट्स दैट कॉल्ड? इसको होमवर्क है, जाइए फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ओके यस, सो नहीं सिल्क रूट इसी को कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। इंडिया का काउंटर पॉलिसी भी है, गो एंड फाइंड आउट। नाउ अब क्या बोल रहे हैं, द चैलेंज बिफोर इंडिया इज टू चूज बिटवीन अ चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर और वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर और द बैलेंस बिटवीन द टू। मतलब एक जगह से ये कह रहा है कि वेस्ट राइज हो रहा है, वेस्ट सेंट्रिक, और दूसरा है चाइना सेंट्रिक है। सो इंडिया ये वाले चूज करे, ये वाले चूज करे, दैट्स अ और बैलेंस करे, दोनों जगह से बैलेंस रहे। If the latter is too preachy for India, the former is too Machiavellian and balancing is going tougher। तो एक्चुअली क्या होता है, ये सब टर्म जो है ना, आप जानते हो, ये Machiavelli was actually a very famous Italian philosopher। He gave the idea of end justify the means। इसका मतलब ये होता है ना, he actually is famously he is called as father of realism, है ना, realism के one of the proponents में से, father of secularism and all। So he actually gave the idea
that there is nothing like ethics in politics. ठीक है, he talks only about national interest. If your national interest is being achieved, there is nothing like ethics and religion. So he has said कि ethics वगैरह कोई जरूरत नहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अगर नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है दैट्स फाइन. तो इसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. सो इसी को मैकियावेलियन कहते हैं, मैकियावेलियन डॉक्ट्रिन है. सो इफ यू आर डूइंग दिस यू आर फॉलोइंग द मैकियावेलियन डॉक्ट्रिन. ठीक है, हाँ डुअलिज्म यू कैन से. हाँ, इंडिया मस्ट देयरफॉर कीप इट्स साइज फॉर्मली फिक्स्ड एंड ऑल. तो ये बता रहे कि इस दोनों में से कोई भी अगर एक लेंगे, इफ द लैटर इज टू प्रीची, लैटर मतलब बाद वाला, हाँ अगर पहले वाला सपोर्ट करेंगे तो मैकियावेलियन होगा. तो ये सब बता रहे हैं, अब उसमें इतना डिटेल नहीं जा रहा, बहुत टफ लैंग्वेज यूज करें तो वो आपके लिए इतना काम करनी. ठीक है, हाँ okay. The next was side में article the deep in this. सारे वही legislative assembly session could not happen in Manipur because the governor did not sign it. ये मैंने बताया है ना. She did not issue the notification for summoning the house. Even the cabinet had advised itself, है ना. ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है ना. So things are not fine in I mean everything is not fine. We hope that things would become better and all. ठीक है. फिर they are quoting 𝗟𝗏𝗴𝗃 judgment. 𝗟𝗏𝗴𝗃 actually अरुणाचल से related था ये केस. It's a very famous judgment of Supreme Court on how governor, एक जगह हुआ था, आई थिंक अरुणाचल में हुआ था कि गवर्नर एक्चुअली प्रीपोन्ड द सेशन, मूविंग अवे फ्रॉम द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. आइडियली द गवर्नर इज सपोज टू फॉलो द एडवाइस, इट कैन नॉट डिफाई द ऑर्डर. इतना समझ लेना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 𝗟𝗏𝗴𝗃 जजमेंट. उसमें कहा गया था कि गवर्नर को जनरली जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए अगर समनिंग ऑफ हाउस हो सबसे रिलेटेड. ठीक है, तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दिया है तो द गवर्नर इज सपोज्ड टू फॉलो इट. ठीक है सर, प्लीज एंटरटेन माय डाउट. व्हाट इज योर डाउट? इज रशिया डेवलप्ड कंट्री? हाँ, डेवलप्ड में आना चाहिए. ठीक है, ऑफ कोर्स देयर हैव बीन बोथ पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी डिमांड्स फॉर द असेंबली टू मीट एंड डिस्कस द वायलेंस. देखो यहाँ देख लो ना, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन, तो मैंने ये सब चीज बताई है ना. देखो जो ब्लू वंस है ना, उसको ग्लोबल नॉर्थ में मानते हैं. ठीक है, लेट मी रिमूव इट. ये रशिया है तो ग्लोबल नॉर्थ में आता है, ये डेवलप्ड में नहीं मानता, लेकिन चाइना को डेवलपिंग ही माना जाता है अभी भी. ठीक है, ओके. तो ब्लू वाले सारे ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हैं और रेड वाले ग्लोबल साउथ हैं. ठीक है, ओके, यस, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. फिर ये भी मैंने yesterday we discussed that Justice Siddharth Verdul, who is a judge of Delhi High Court, the collegium recommended for him to be to be appointed as Manipur High Court Chief Justice, but still it has not been done. अभी तक process में ये हुआ नहीं complete. Saudi UAE divide becomes public. अब देखो ये थोड़ा सा और डिटेल में. तलवीज अहमद, he is a former IFS, वो वहाँ सर्व भी कर चुके हैं सऊदी अरब वगैरह में. he has been an ambassador to Saudi Arab and UAE. इसमें बहुत डिटेल नहीं जाना, आपको कुछ चीजें बस समझनी है. देखो मैं बताता हूँ. Here is India, this is Saudi Arab, this is UAE. तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी का गुड रिलेशन था according to the author, that they were having good relation, but recently we are seeing moving towards bad or not very good relation. ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेशन गड़बड़ा रहा है. ठीक है, that is what the author is writing. क्यों? तो इसमें देखो एक रीजन ये है कि Mohammed bin Salman was not happy and because he told the Saudi journalist that UAE has stabbed us in the back and threatened that they will see what I can do, etc. and all. There will be relation was in Qatar and all. Because the Crown Prince of UAE did not come to Gulf Cooperation Council visiting Chinese President Xi Jinping. अब देखो, हाँ, अब देखो हुआ ये कि देखो ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, ये ग्रीन कंट्रीज रहता है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, ओमान है. इसमें चाइनीज प्रेसिडेंट को बुलाया गया था. चाइना's president was invited and UAE, तो UAE के जो हेड है ना उसमें नहीं आए थे उस मीटिंग में. And that is why Mohammed bin Salman, who is the main ruler of you can say Saudi Arab, or the king, main de facto ruler of Saudi Arab, was not happy with UAE's head. कि why didn't you come in Gulf Cooperation Council meeting? ये सारे GCC के members हैं Gulf Cooperation Council. शायद आपको पता होगा इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं, पर्शियन गल्फ. And that is why countries around it is called as Gulf countries. ये सब मैंने पढ़ाया है पेड क्लासेस में, Gulf countries and all. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट सेइंग, द सरप्राइजिंग आउटबर्स्ट सिग्नल्स द एंड ऑफ कैमराडेरी बिटवीन. हाँ, तो वही है कि रिलेशनशिप थोड़ा इंप्रूव नहीं है. मतलब मोहम्मद बिन जायद इज फ्रॉम यूएई एंड ऑल, है ना. सो ही इज नॉट हैप्पी विद द लीडरशिप ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ओके, एंड इट इज सेड कि द टू रॉयल्स, मतलब द यूएई हेड एंड द सऊदी हेड, दे बॉन्डेड टुगेदर अर्लियर इन द पास्ट to strengthen 𝗟C, who is actually the Egyptian president.
सो फेवर किया था इजिप्शियन प्रेसिडेंट को दोनों ने मिलके। देन व्यूड ईरान एज अ रीजनल थ्रेट, ठीक है, लेकिन अभी ईरान से सऊदी का थोड़ा सा बेटर इंप्रूवमेंट हो गया, यस, है ना, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ चाइना, विच इज नॉट लाइक बाय यूएई। तो ये भी एक इशू है कि दोनों अपोजिट साइड चले गए, ठीक है। फिर एक ओपेक का मसला हुआ था, द ईयू अब्रप्टली रिजेक्टेड द प्रपोजल टू कट द प्रोडक्शन पुट फॉरवर्ड बाय ओपेक प्लस। तो आपको पता होगा ये ओपेक कंट्री, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये डार्क ब्लू वाले ओपेक कंट्रीज हैं ये सब जो है, ठीक है। और ओपेक प्लस में और भी सारे कंट्रीज आ गए, इतने सारे कंट्रीज, इवन रशिया एंड कजाकिस्तान इज आल्सो देयर, ठीक है। ओके, नहीं पर्शियन गल्फ उसको कहते हैं, ये वाला को जो मैं बता रहा था, दिस इज पर्शियन गल्फ, समवन वाज आस्किंग, ठीक है। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक? जद्दा, रियाद, वियना, दुबई। क्या सही जवाब बताइए? ये 0 गलती से लिखा गया। व्हाट इज द राइट आंसर? हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। Yes, the right answer is, anyone? Gauri Sethi, yes, Vienna is the right answer. C is the right answer to this question. Vienna में, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो भाई ये डिफरेंस वहां पे भी ओपेक के मामले में भी थोड़ा सा डिफरेंस इरप्ट हो गया। फिर एक्चुअली सोकोत्रा आइलैंड ने यमेत्री में देखो इस रीजन में एक्सपैंड करी यूएई, देखो यूएई यहाँ पे ना, यहाँ पे यमन है, यहाँ पे सोकोत्रा आइलैंड यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, तो यूएई इज डूइंग एक्चुअली सम एक्टिविटीज इन दिस रीजन आल्सो, ठीक है। तो शायद सऊदी अरब को ना पसंद आया, समथिंग लाइक दैट, ओके, है ना। एंड एक्चुअली यूएई इज एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग बेस इन इरिट्रिया एंड सोमालीलैंड। तो इरिट्रिया, ये वाला इरिट्रिया है, ये वाला सोमालिया है, ठीक है। यहाँ पे भी अपना बेस बना रही है, यहाँ पर सोकोत्रा आइलैंड है, उस पर भी इंटरेस्ट शो कर रही कौन? यूएई, ठीक है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। एट द सेम टाइम एक्चुअली फिर बहुत डिटेल में जाना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। फिर जैसे अरब पीस इनिशिएटिव हुआ, मतलब यूएई डिड अ डील विद इजराइल। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? 2020 क्लैट में क्वेश्चन भी आया था, पूरा एक पैसेज था, डील बिटवीन यूएई एंड इजराइल, व्हाट्स दैट कॉल्ड? उसको क्या कहते हैं बताइए। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल न्यूज में चला, देखो आपको पता होगा सूडान में एक सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है, आर्मी वर्सेस रैपिड सपोर्ट फोर्स। मैंने बताया था रैपिड सपोर्ट फोर्स इज पारामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक जो है, देखो आप देखोगे इसको, इसमें ही बता रहे हैं कि देखो यूएई इज बैकिंग मिलिट्री लीडर डैगलो, ठीक है। तो रैपिड सपोर्ट फोर्स को यूएई सपोर्ट कर रही है और सऊदी अरब जो है ना वो आर्मी को सपोर्ट कर रही है इन सूडान, ओके, इज इट क्लियर? हाँ, इससे पहले वाले का आंसर सही है जो मैंने बताया था आपको कि यूएई और इजराइल के बीच जो डील हुआ था उसको अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, समवन हैज रिटन। यस, गौरी सेठी, वेरी गुड, है ना। So in the same fashion, जब सूडान में जो सिविल वॉर हो रहा है तो दो अलग साइड है, तो यूएई दूसरे पक्ष को सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब दूसरे पक्ष को, सो बोथ आर सपोर्टिंग द ऑपोजिट साइड्स, ओके। तो यहाँ देख भी सकते हो सूडान इज आर्म फोर्सेस इज देयर, ओके, व्हिच इज हेडेड बाय अब्दुल फत्ताह अल बुरहान, सो इट इज सपोर्टेड बाय सऊदी अरब, ओके। और जो ऑपोजिट साइड में रैपिड सपोर्ट फोर्स तरह पारा मिलिट्री फोर्स है, व्हिच इज हेडेड बाय हेमेदी या मोहम्मद हमदान दगालो नाम से लिखा हुआ है ना, एंड दिस इज सपोर्टेड बाय यूएई। सो एक यहाँ पे भी इशू है कि इन सूडान एक्चुअली द सऊदी अरब एंड यूएई आर ऑन अपोजिट साइड्स, ओके। सो अपना अपना इंटरेस्ट होता है, दैट इज व्हाई इट्स देयर। हु वन फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? बताइए तो। योर ऑप्शंस आर इंग्लैंड, ब्राजील, स्पेन, पोर्चुगल। क्या सही जवाब है? व्हाट इज द राइट आंसर? सबको लाइक बटन, गाइस वी आर सीइंग ओनली 29 लाइक्स, 25 इज वाचिंग, तो 30 प्लस लाइक्स ले जाओ एवरीवन, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, वी आर वर्किंग हार्ड टू कम अप विद दिस कंटेंट्स, है ना। हाँ, नाम नहीं याद रखना, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। आर्मी वर्सेस आरएसएफ और टसल हो रहा है, हाँ, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, स्पेन ने जीता है, सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, 1-0 से विद इंग्लैंड, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। यस, नम्र आफ्ताब, वेरी गुड, हाँ, सी इज द राइट आंसर। नितिका, लोक प्रताप, प्रिया चौहान, यस, ठीक है। A decoding president speech, so he's a foreign service officer and he has written about the president's speech, decoding and all, ठीक है। So she talks about our constitution is our guiding document and all, इसी को कोट किया, ये सब बता रहे बहुत सारी चीज, and they talk कि okay by 2047 we hope that we'll become a developed countries and all, ठीक है ना, that is what is being talked about here, ठीक है। Then on smartphone manufacturing, इसको अपने से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा,
smartphone manufacturing in India. That's not very important. Who is the head of the committee of retired High Court judges formed by Supreme Court with regard to Manipur? Your options are Justice G. Rohini, Justice Geeta Mittal, Justice Rooma Pal, Justice R. Bhanumati. बताइए तो. Head of the committee of retired High Court judges formed by Supreme Court with regard to Manipur. Yes, very good. Option B, Priya Chavan. Yes, Gauri. Yes. Justice Geeta Mittal committee ने Supreme Court panel वही Justice Geeta Mittal panel flags loss of essential documents of people in Manipur. तो चूंकि वॉयलेंस वगैरह हुआ तो बहुत से लोगों को जो मेन डॉक्यूमेंट होता है जैसे 10-12 मार्कशीट या कोई भी और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो बहुत सारे लोगों का लॉस हो गया है. ओके, सो जस्टिस गीता मित्तल कमिटी अपॉइंटेड बाय द टॉप कोर्ट सबमिट्स 3 reports and all. Okay, so these are the 3 judges. One is the Chief Justice. So she is actually the former ex-Chief Justice of Jammu and Kashmir, Srinagar High Court. Okay. Just have an idea. So that is what she submitted the report. कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे documents गायब हो गया and all. Okay. Supervising, intervening, monitoring, relief, rehabilitation, restoration of home, religious place and all. Okay. Yes. TDC policy मतलब full form आप बताइए. To counter belt and road initiative. एक डायमंड नेकलेस पॉलिसी करके कुछ अभी एक बार चेक कर लीजिएगा. इसका नाम को पूरा नहीं याद आ रहा है. दिस इज डायमंड नेकलेस पॉलिसी समथिंग करके इंडिया की टू काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ठीक है, या नेकलेस डायमंड या डायमंड नेकलेस पॉलिसी कुछ करके. ठीक है, गो एंड फाइंड आउट. हाँ, सो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इट. एक और छोटा सा आर्टिकल था. एक्चुअली ब्रिटेन में क्या हुआ कि नर्स शी किल्ड 7 न्यूबॉर्न चिल्ड्रन इन ब्रिटेन and she was arrested, jailed for lifetime, and actually she was caught by an Indian Dr. Ravi Jayaram. Okay, one of the person who is involved in catching this lady is Dr. Ravi Jayaram. Okay, so ये news में था. So that is what you should be knowing it. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. सबको like button press कर दे जाओ guys. We are seeing only 12 likes, 24 is watching. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.